So here in this question you are going to find the unknown value in the coordinates. So question is, find the value of x if the distance between the points are x comma minus 1 and 3 comma minus 2 is 5. Okay, question पूछा है, find the value of x if the distance between the two points, that is x minus 1 and 3 minus 2 is 5. इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो 5 है, इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है. ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी सॉल्यूशन करने के लिए कंसिडर करते हैं पॉइंट्स. तो कौन कौन से पॉइंट है, इसको मैं नाम देती हूँ. इस पॉइंट का नाम देती हूँ P. यू कैन टेक एनी लेटर, x कॉमा माइनस 1 एंड ये दूसरा पॉइंट है Q 3 कॉमा 2. ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है. इन दोनों का जो डिस्टेंस आंसर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आएगा, इसका मतलब जो PQ का आंसर आएगा वो होगा आंसर 5. ओके, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है. सिर्फ इतना ही काम है यहाँ पे. सो फर्स्ट स्टेप विल बी write the formula PQ equal x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Can I give you some time to substitute these values and solve? Okay, this is simple. Just substitute the value and get the answer. I'll give you some time. Do it. Yes, ma'am. Boys, let me know up to what step you have solved. कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक सॉल्व कर पाए. ओके, पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, PQ का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो PQ का वैल्यू ये 5 हो गया. एंड देन x2 वैल्यू इज 3 माइनस x1 is x whole square plus 2 minus of minus 1. Okay, don't forget this negative sign. So it is negative and negative 1 whole square. So Yes, ma'am. yeah, 5 equal, इसको ऐसे ही रखते हैं, 3 minus x whole square. This we can solve. This will be 2 negative times negative becomes positive 1 whole square. So ये आएगा 5 root 3 minus x whole square plus 2 plus 1 is 3. 3 square is 9. यहाँ तक आ गया बॉयज. इसके बाद क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए आगे. मैम हमको रूट के बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उसको यूज कर सकते हैं. व्हाट इज दैट ट्रिक? इफ यू वांट टू रिमूव द रूट साइन,
there is a trick we can use. मैम हाँ, पर हम इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते इसको बाहर. ये 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 ये पूरा एक टर्म है प्राजक्ता, इसको हम नहीं निकाल सकते. इसको 3 माइनस एक्स सेपरेटली लिख के 9 को सेपरेटली लिख के 3 नहीं लिख सकते. ये पूरा टर्म है. ओके, तो इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो इसको स्क्वायर किया तो ये 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर, और ये पूरा जो रूट साइन है ये कैंसिल हो जाएगा. 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 ये, तो ये 2 साइन ये रूट साइन कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा ये 25 और ये आएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9. अभी इस 3 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सपांड करो फॉर्मूला यूज करके. 25 इक्वल दिस विल बी 9 minus 3 times 2 is 6x plus x square plus 9. Okay, solve this further. You will get one quadratic equation here. Let us bring the 25 on the other side. It will be x square minus 6x plus 9 minus 25. तो 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये पूरा ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कितना आंसर आता है देखो. What you will get here? 9 plus 9 is 18. 18 minus 25 is how much? Minus 7. Right, minus 7 आता है. So this positive sign we will remove. Minus 7. So this is a quadratic equation. We can also write it as x square minus 6x minus 7 equals 0. We know how to solve the quadratic equation, right? This is one number here. 1 multiply negative 7 gives negative 7. See the two numbers, when you multiply you get negative 7. There is only one option. 7 multiply by 1. We should get negative 6. So negative यहाँ पे positive यहाँ पे डालेंगे तो आंसर आएगा negative 6. I can use this directly. X minus 7 equals 0 or x plus 1 equals 0. So x will be positive 7 and x will be negative 1. So there are two values we are getting of x. Two values मतलब यहाँ पे coordinates क्या हो सकते हैं, या तो negative 7 and minus 1 हो सकता है, या फिर negative 1 and negative 1 हो सकता है. यही है ना x equal x minus 1 coordinate, इसका ही हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. टू वैल्यूज क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, इसको हम प्लॉट करके देखेंगे. ओके, प्लॉट करके अगर हमने देखा रफली, क्योंकि ये जब हम प्लॉट करते हैं रफली तो हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे. ये देखो p का वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है. q का वैल्यू है 3,2. सो इट इज 1 2 3 1 2. तो यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने बोला है कि पी क्यू का डिस्टेंस, ये तो q हो गया, ये पी क्यू का डिस्टेंस 5 होना चाहिए. तो ये ऐसे भी हो सकता है डिस्टेंस, ऐसे भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है. 5 होना चाहिए डिस्टेंस, राइट. लेकिन हमें पॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन से मिले, 7 माइनस 1, एक तो पॉजिटिव 7 इक्वल माइनस 1 मतलब यहाँ पे मिला, और दूसरा पॉइंट हमें मिला नेगेटिव 1 माइनस नेगेटिव 1, दैट इज समवेयर हियर. दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स नीचे यहाँ पे आ रहे हैं.
Got it? It can be anywhere, but when we solve this equation, we got these 2 points. So both the points are correct. वहां से Q से यहाँ तक, Q से इस पॉइंट तक दोनों लेंथ 5 है. Okay, clear? Write down this and let me know when you finish this. Yes, ma'am. Yeah. Boys, let me know when you finish writing. Yeah, ma'am. When you finish writing, let me know. अगर हो गया तो लिख के. Yes, ma'am. Prathamesh, done? Yes, ma'am. Yeah. I'm waiting because I want to know whether you finished or not. Okay. ये हो गया एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक वैल्यू हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, डिस्टेंस दिया होता है. ओके. आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है वैसा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Can you try this question now? Find x if distance between L x7 M115 is 10. वैसे का वैसा ही सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है. सॉल्व दिस. If you copied this question, should I show you the screen, the earlier question? Yes, copied. Boys, कॉपी हो गया क्वेश्चन?
Anybody is having any network problem? कौन आ रहा है कौन जा रहा है? Yes, ma'am. Done. बॉयज हो गया क्या? यस मैम। आंसर सॉल्व करके हो गया? ये 7th वाला बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है वो। डिस्टेंस का आंसर उन्होंने 10 दिया है, यहाँ पे 5 है। What answer did you get, Prajakta? X is equal to 7 or minus 5. Yeah, that's correct. अगर बॉयज को आंसर नहीं मिला है, लेट मी नो। मिला है आंसर तो आई विल नॉट सॉल्व दैट। अगर नहीं मिला तो मैं सॉल्व करूंगी, बता दो मुझे। मैम सॉल्व करो। ओके ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है L एंड M और डिस्टेंस का वैल्यू दिया है 10, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। L का पॉइंट x, 7, M is 1 and 15 and distance here means it is LM। LM का वैल्यू है 10। फॉर्मूला फॉर LM is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance formula. LM value is 10. Just substitute the value. It is not very difficult. x2 is 1 minus x1 is x whole square plus 15 minus 7 whole square. 10 equals, just keep on solving. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। 15 माइनस 7 इज हाउ मच? 8? 8. या 8 स्क्वायर। सो दिस विल बी 10 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 8 इज 64। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था ये रूट साइन निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो है स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर हमने स्क्वायर किया तो ये रूट साइन चला जाएगा, वही ट्रिक है। इसीलिए ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और ये आएगा स्क्वायर में, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64। इसको स्क्वायर किया तो ये रूट साइन और ये 2 स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ ये, तो 10 स्क्वायर का हो जाएगा 100 और ये सिर्फ अंदर का वैल्यू बचेगा, दैट इज 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64। और इसको आगे सॉल्व करना है। 100 इक्वल, यूज a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला। दिस विल बी 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 64। so this will be
100 माइनस 64 किया और वो 1 भी यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे क्या आएगा, या फिर जस्ट राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. You can just put 0 here, write the x square value, then you have x value as minus 2x. यहाँ पे प्लस 64 है प्लस 1 है, वो 100 आएगा इस तरफ तो बन जाएगा नेगेटिव 100. 0 इक्वल x square minus 2x, and this whole value if you add and subtract, what are you getting? Is it minus 35? Yes, ma'am. Yeah, this also we can write as x square minus 2x minus 35 equals 0. So we have to find the factors here. Minus 35, 5 times 7 is minus 35. तो इसको नेगेटिव डालना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा नेगेटिव 2. दैट इज मिडल वैल्यू. So we can write this as x plus 5 equals 0 or x minus 7 equal 0. ये quadratic equation अगर आपने ठीक से पढ़ा है, if you know how to find the factor, it is very simple to solve further. That's why you have to always practice what you have learned in previous chapters. And here x will be negative 5 and x will be positive 7. तो इस तरह से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं. दैट इज हमारे पास हमने क्वेश्चन में उन्होंने कोऑर्डिनेट दिया है x, 7. तो इसको दो वैल्यूज, दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. एक तो नेगेटिव 5, 7 आता है एंड दूसरा जो वैल्यू है पॉजिटिव 7, 7. तो ये दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से अगर हमने m से फाइंड आउट किया तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं. इफ यू प्लॉट द ग्राफ यू विल अंडरस्टैंड लाइक द वे वी डिड अर्लियर. यहाँ पे इस क्वेश्चन में उस तरह से रफली प्लॉट करके देखोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे. ओके, अभी आपके इसी एक्सरसाइज में जो बाकी के क्वेश्चंस है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स देने के बाद वो आपको बताएंगे कि वो स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या ट्राइंगल है. ये आपको प्रूव करना पड़ेगा. ओके, ये प्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. जो मेन प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर का, प्रॉपर्टी क्या होता है, स्क्वायर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए. वो क्या है? All the sides are equal and the diagonals are congruent. या तो उसके जो चारों साइड्स है वो सेम होने चाहिए और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी सेम होने चाहिए स्क्वायर के. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस मतलब लेंथ. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और देखना है कि जो चारों साइड्स है वो सेम आ रहे हैं या नहीं. फिर उसके बाद डायगोनल का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करके देखना है कि डायगोनल का भी लेंथ सेम आ रहा है या नहीं. ये दोनों प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई हो रही है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है. उसी तरह से रोम्बस के लिए भी पूछ सकते हैं, पैरेललोग्राम के लिए भी पूछ सकते हैं. ओके, रोम्बस के लिए पूछ सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछ सकते हैं, आइसोसेलेस के लिए पूछ सकते हैं, स्केलिन ट्राइंगल के लिए भी पूछ सकते हैं, फिर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी पूछ सकते हैं. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं लेकिन ये पूछ सकते हैं एग्जाम. आपके प्रॉब्लम सेट में शायद हो. ओके, आई डोंट नो. So let's start. Let me give you some points here so that you know what kind of questions can come on this concept. Some useful points. They can ask you for square. Okay, what they will say? They will tell you to prove all the four sides are equal or not. तो यहाँ पे आपको प्रूव करना होगा all sides are equal and diagonals are also equal. ये मैं हिंट दे रही हूँ, अगर स्क्वायर पूछा तो ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इजीली ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाती है तो वो स्क्वायर प्रूव हो जाता है. सेकेंड, रोम्बस पूछ सकते हैं. रोम्बस एंड स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? चारों साइड सेम होते हैं क्या रोम्बस के? Yes, ma'am. ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो हो गया. और कुछ?
डायगोनल्स में इक्वल होते हैं। नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता। इक्वल इन द सेंस कभी कभी ये भी ऐसे भी होता है। देखो ये शायद छोटा लेंथ हो और ये बड़ा लेंथ हो, ऐसे भी चांसेस आते हैं रोम्बस के। ओके, ऐसे भी चांस आते हैं, या फिर दोनों सेम भी होता है। दोनों सेम हो गए तो ये एक तरह का स्क्वायर ही हो गया, मतलब उसका सिर्फ पोजीशन उन्होंने अलग तरीके से रखा है। तो दोनों चांसेस एंगल 90 डिग्री नहीं होते। हाँ, 90 डिग्री नहीं होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। ओके, देन थर्ड वन, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? Same as square. Side, no, parallel sides are equal हाँ, and diagonals are congruent. पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स सेम। अगर पैरेललोग्राम पूछा तो पैरेललोग्राम के साइड्स के बारे में क्या लगता है आपको? पैरेललोग्राम दिखने में ऐसे होता है, तो ये साइड और ये साइड सेम होगा, ये साइड और ये साइड सेम होगा। मतलब ये लेंथ बोल रही हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल। फिर और क्या पूछ सकते हैं? पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक ऐसा पूछा है क्या? मुझे लगा है। नहीं है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट में दिया जाता है कि पैरेललोग्राम है बट वो रेक्टेंगल नहीं है, स्पेसिफिकली ऐसे कहा जाता है। तो अगर वो रेक्टेंगल नहीं है लेकिन पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे एंड डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल हो जाए। डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल नहीं रहेंगे इसके अंदर। मतलब वो प्रूव करना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल but diagonals are not equal. And if the question is asked like this, rhombus but not square, rhombus but not square, so in this case specifically you have to prove that all sides are equal, but diagonals are not equal. Okay, write these points. After finishing this chapter, every week on Saturday you will be having a test of math, so that you can keep in contact with math subject. You don't forget the math. We will start with science chapter
after this, but every week on Saturday you will be having a math test. So don't ignore the test, study and answer the test. Ma'am, Yes? ma'am, Huh? Arun is saying that ma'am take the test on Tuesday or Wednesday. Okay. क्यों सैटरडे क्लास अटेंड करने के चांसेस कम है? Or is it because you will get Sunday holiday, you will prepare for the test? No मैम, वो एक्चुअली मतलब बाहर गाँव गए हैं ना इसलिए. Okay. So is it only for coming week or every week you are saying? Tuesday or Wednesday? No ma'am, just this week. Yeah, just this week. Let me finish this chapter. By this week we will finish this chapter and we can start with science also. From next week I will take the test. So you will have some time to finish the problem set also. Next to next week I will start the test. Yes ma'am, written. Okay. सर ओके फाइन. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक में से लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क की तरह दूंगी. देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन हियर, दैट इज क्वेश्चन 4. आई टेक क्वेश्चन 4. सो वी विल टॉक अबाउट ट्राइंगल नाउ. There are 3 coordinates given to us and we have to prove that this is right angle triangle. Right angle triangle होने के लिए कौन से important properties follow होने चाहिए right angle triangle में? All angles and sides should be same. All angles should be same. ऐसा नहीं होता. All angles No कैसे no same sorry, होगा? sides should be same. All sides भी same नहीं होते right angle triangle में. Sorry ma'am, right angle triangle में square of hypotenuse is equal to square of base and height. या इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए, राइट? राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पहली बात तो हमारे दिमाग में आती है वो 90 डिग्री होता है, हाँ? और ये साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर जब हम ऐड करते हैं तो ये डायगोनल लेंथ मिलना चाहिए, राइट? सो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम टेल्स यू दैट सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस हैव टू फॉलो. अभी हम इस क्वेश्चन में हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया है तो हम इसको रफली यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे आता है. नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस, सो दैट वी कैन गेट सम आइडिया व्हाट आंसर मे कम फॉर द क्वेश्चन. यू ऑलरेडी हैव द guessing answer when you plot this roughly. So let us plot this point. P point is minus 2 comma 2, that is 1 1 2. This is negative 2 1 2, so this will be P. Okay, then Q is 2 2, it is here, this is Q. Then R is 2 7 2 7 3 4 5 6 7, so somewhere here. क्या लगता है आपको ये तीनों पॉइंट को देख के राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है ये? Yes मैम, शायद फॉर्म हो सकता है. ये देखो ये 2, क्योंकि मैम दो वर्टाइसेस की x कोऑर्डिनेट 2 है. हाँ ये देखो 2 2 ही है, x के वैल्यू दोनों पॉइंट्स के 2 ही है, राइट? इस तरह से ये 90 डिग्री हो सकता है. इसका मतलब हमारे पास
ऑलरेडी गेस कर सकते हैं हम कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सिर्फ इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे एंड इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और वो पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई होता है या नहीं वो देखना है। So first thing what we will do, here there are points, let me mark these points with white color. This is R, this is P and this is Q. इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे साइड्स कौन कौन से हैं, PQ है, फिर आपको RQ फाइंड आउट करना है एंड देन आपको PR फाइंड आउट करना है। तो यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला and find the answer. Sure, can you do this? Can I give you some time to do this? अब खुद से सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी है, फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1, वो डाल के सॉल्व करो पी क्यू का आंसर। चलो जल्दी से कर लो ये। If you get confused, you write the points, both points here. PQ का है -2 और ये वाला है 2,2. So x2 - x1 y2 - y1. 2 minus of -2 whole square plus 2 minus 2 whole square. तो क्या आएगा इसका 2, ये नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव हो गया, +2 होल स्क्वायर, ये हो गया 0। मैम हाँ मैम क्या हुआ, ये डिस्टेंस आर क्यू फाइंड आउट करने का है या क्यू आर फाइंड आउट करने का है? कुछ भी फाइंड आउट करोगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा वो वैल्यू, तो नेगेटिव आया तो भी वो स्क्वायर होके चला जाएगा। सो दिस इज 4 स्क्वायर। which will give you 16 inside the square root. Again, the answer is 4. Come on, find out QR and PR also. Boys, I want answer from you. Speak up. Tell me what answer do you get. Solve, discuss. मैम ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है मैम? 5.1. Yes ma'am, done. RQ value, what you got? 5. RQ or QR, whatever. 5. 1 minute मैम. Okay. Boys want to give the answer. Let me wait for them. आर क्यू की मैम 5 आती Okay. Fine. और पी आर की रूट 41 आती है. Root 41. Fine.
अभी इसको पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है क्या नहीं वो देखना है हमको। या पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो होने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे पी आर का लेंथ, ये हमने ड्रॉ किया प्लॉट, ओके उसकी वजह से, और ये नंबर को देख के भी हमें पता चलता है कि पी आर का लेंथ सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा वो डायगोनल लेंथ होगा। पी आर का लेंथ बड़ा है, ये कैसे पता चलता है बताओ मुझे। √41 है, इसका नंबर क्या आ सकता है √41 का, या फिर 41 के आसपास कोई स्क्वायर रूट है। 41 के आसपास कौन सा नंबर है ऐसा स्क्वायर रूट वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 49 भी है और 36 भी है, राइट। और 36 या 36 अगर हम पकड़ लेते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर आता है 6। तो ऑब्वियसली पी आर हमारा बड़ा लेंथ है आर क्यू से भी और पी क्यू से भी, तो हमारा पी आर जो है वो डायगोनल लेंथ हो गया। डायगोनल लेंथ पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायगोनल लेंथ नहीं पहचानेंगे हम तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर ऐड करना है। तो सिंस पी आर स्क्वायर विल बी आउटसाइड एंड, और हमारा यहाँ पे प्लॉट करके भी जब हमने रफली ड्रॉ किया तो हमें पता चल गया कि पी आर का लेंथ बड़ा है। सो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर का वैल्यू हमारे पास √41 है। लेट अस स्क्वायर दिस, PQ value is 4 square and this one is 5 square. Is this noise from my side or your side? No mic. मैम किसका माइक? काय आवाज येत होता का? डेंजर अब ठीक कशाचा है? आवाज येत होता? इतकंच होतं रे. अब ठीक है? अगर बोलते ही हो रहा है. आसपास कोई अगर दूसरा मोबाइल वगैरह है, कोई डिवाइस है तो उसको साइड में रखो। यस मैम, भाई बैठा है साइड में. हाँ, तो अभी ये √41 स्क्वायर जो है, ये रूट साइन और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 41। और यहाँ पे 4 स्क्वायर का आंसर आता है 16, 5 स्क्वायर का आता है 25। ये दोनों ऐड करके 41 आता है क्या आंसर? 16 + 25 41 आता है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। ओके, सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे, यू हैव टू मेंशन इट इन अ सेंटेंस वाइज at the last. Okay, mention the points. I did not mention the points here. Hence proved P, Q, R with coordinates are vertices of a right angle triangle. Okay, ये हो गया right angle triangle. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने पूछा इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, तो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या फॉलो होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में? sides should be equal. ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि मुझे पहले लगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ क्या हुआ? मैम पहले आपने वो राइट एंगल का पूछा था ना प्रॉपर्टी। हाँ, तुमने इक्विलेटरल का बताया था तो मुझे। मुझे लगा हाँ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, तीनों लेंथ फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों साइड के लेंथ फाइंड आउट करोगे और देखोगे कि आंसर सेम है या नहीं। अगर तीनों के वैल्यूज के आंसर सेम आ रहे हैं देन यू कैन से इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मान लो उसमें से दो वैल्यूज सेम आ रहे हैं, एक अलग आ रहा है, तो कौन सा टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, दो साइड सेम होते हैं आइसोसेलेस के लिए। तीनों के तीनों साइड्स अलग है और उन्होंने मेंशन किया कि ये ट्राइंगल है, तो कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा? तीनों साइड्स अलग अलग है, स्केलिन ट्राइंगल होगा, राइट। तो इसी ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के बेस
3-4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में. ओके, इट्स नॉट दैट आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड रहो, बट बेस्ड ऑन दिस दे कैन आस्क डिफरेंट वैरायटीज. ओके, तो ट्राइंगल के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल पूछा जा सकता है, इक्विलेटरल पूछा जा सकता है, फिर आइसोसेलेस पूछा जा सकता है, स्केलिन पूछा जा सकता है. सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज दे कैन आस्क. ओके, इज दैट क्लियर? So now I want to give you some questions as a homework which you have to try. Okay, पहला क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में ही है एक्सरसाइज का, that is the last question, ये वाला. Show that points are vertices of equilateral triangle. Please try this. Equilateral triangle मतलब तीनों साइड सेम होने चाहिए. इस पॉइंट्स को ग्राफ में मतलब रफली ग्राफ में प्लॉट करके देखो और उसके साइड्स ए बी बी सी और ए सी ऐसे आएगा ना वो ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल ऐसे हो गया तो आप ए बी फाइंड आउट करोगे, बी सी फाइंड आउट करोगे और ए सी साइड का फाइंड आउट करोगे. तो वो कोऑर्डिनेट्स यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो एंड देखो कि वैल्यूज क्या आते हैं. ओके, ऑर्डर अगर चेंज भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ऑर्डर चेंज होता है तो अगर नेगेटिव में भी आया तो स्क्वायर होके वो पॉजिटिव आ जाएगा. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, जस्ट find the distance between AB, BC and AC and see whether you are getting all the sides values are same. Then you can prove that it is equilateral triangle. Okay, so that is a homework for you. Clear? Yes, ma'am. And more questions I am going to give you as a practice. Take down the question. ये ट्राइंगल के बेस पे है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राइंगल लिख रही हूँ. पहला क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में ही है 5.1 क्वेश्चन 7. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ मैं. शो दैट द पॉइंट्स don't get scared if the number is not given. If the letters are given also, it is the same way you have to solve. A comma A, the next coordinate is negative A comma A, and the third coordinate is minus root 3. A रूट के बाहर है, हाँ, रूट के अंदर नहीं है वो, A रूट के बाहर है, comma root 3 A. A is outside the root. Are the vertices of a equilateral triangle. Please take this question as a challenge and try to solve. Don't make me solve it. Try best from your side. It is very easy and same way how you will be doing question 1. Are the vertices of equilateral triangle. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको सॉल्व कर पाओगे. जो क्लास में पढ़ाया है उसको 2-3 बार वो क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो बिना देखे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस स्टेप को इस तरह से किया तो ऐसे आएगा. देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व द होमवर्क. तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे प्रूव करना है. देन थर्ड क्वेश्चन. शो दैट A 6,4, B 5, -2 and C 7, -2 are the vertices of आइसोसेलेस ट्राइंगल. आपको ऑलरेडी पता है आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल है तो उसके प्रॉपर्टीज दो साइड सेम होने चाहिए, एक अलग होना चाहिए. तो कौन से दो साइड सेम होंगे वो देखना पड़ेगा आपको. ए बी बी सी ए सी फाइंड आउट करना है और कौन से दो साइड सेम आते हैं वो देखना है. बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में इस क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन ऐड किया जाता है, जैसे फाइंड एरिया, फाइंड द मीडियम, इस टाइप के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं. So for you right now, this much you try to do.
Copy these questions in your book. मुझे इसके आंसर आज मिलेंगे, आपके पास पूरा टाइम है, आज मिलना ही चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉल्व कर लेना। ठीक है मैम। ओके, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी, उसके आधार पे आपको सॉल्व करना है। आई वॉन्ट यू टू ट्राई, रियली आई वॉन्ट यू टू ट्राई। ये हो गया आपका फोर्थ होमवर्क, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसे होता है? ऐसे। हाँ, इसका मतलब मान लो आप एक ग्राफ ले लो, ओके, अंदाजे से इसको प्लॉट करो, आपको इस तरह का डायग्राम दिख जाएगा, पैरेललोग्राम का डायग्राम दिख जाएगा। और उसके आधार पे आप ये क्या कहते हैं, PQRS लेबल कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि कौन से दो साइड्स हैं वो सेम होंगे। PS एंड QR सेम होगा, SR एंड PQ सेम होगा। अगर ये साइड सेम आते हैं, आपको दो लेंथ अगर सेम आते हैं, तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अभी मैंने पॉइंट दिया था यहाँ पे, पैरेललोग्राम अगर होगा तो ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, ये फॉलो होना चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस सॉल्व करो, PS, SR, QR, PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करो और देखो कि ऑपोजिट साइड सेम आते हैं या नहीं। आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली आना चाहिए। ओके, तो ये ट्राई कर लेना। ओके, कर लोगे? कर सकती हूँ भरोसा, इतना कर लोगे? ओके, डिफिकल्टी आती है तो बाद में मैं हूँ, आप पूछ सकते हो। तो बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई फर्स्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एवरीथिंग। ये क्वेश्चन हो गया फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क, जो सिक्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस होने के लिए, रोम्बस का डायग्राम तो ऐसे होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड्स हैं, ये सारे साइड्स सेम होते हैं, रोम्बस के साइड्स सेम होते हैं। कभी कभी डायगोनल एक अलग होगा, ये दूसरा अलग होगा, या फिर डायगोनल सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। ओके, तो अगर थोड़ा सा लंबा हुआ तो डायगोनल अलग हो जाएगा। सो यू कैन चेक। तो आप क्या क्या चेक करोगे? अगर ये A है, B, C, D मान लो ऐसे वैल्यूज है, इसका भी अगर आप प्लॉट करोगे तो पता चल जाएगा, अंदाजा आ जाएगा कि इसका डायगोनल सेम है या नहीं। ओके, तो आपको आइडिया मिल जाता है, आप अगर रफली प्लॉट करते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है, फिर आपको कैलकुलेशन करके बस प्रूफ करना है कि ये रोम्बस ABCD है। तो आप डिस्टेंस कौन कौन से फाइंड आउट करोगे? AB, फिर BC, फिर AB, BC, CD और फिर DA। ये सारे साइड्स फाइंड आउट करोगे, पता लगाओगे कि सारे साइड्स का आंसर सेम है। फिर अब डायगोनल भी पता लगाना है आपको। डायगोनल मतलब AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड BD का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ये डायगोनल्स हो गए दोनों, राइट? इसका भी आंसर आपको देखना है कि सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। ओके, तो ये है इसका प्रोसीजर सॉल्व करने का। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओनली थिंग यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व। हो जाएगा ये आज? यस मैम। ओके, तो पूरे स्पिरिट के साथ भरोसा रखती हूँ कि आप सॉल्व करके भेज दोगे, सॉल्व करके भेज दोगे। ओके, तो फिर हम कल मिलते हैं। अगर हो सके तो आई विल टेल यू द टाइम इफ इट इज पॉसिबल एट 11 o'clock। ओके, अगर ज्यादातर मैक्सिमम पॉसिबल है तो आई विल से इट इज 11 o'clock।
Just be ready during Okay. that time. Okay, so till then, Yeah, ma'am. any question you want to ask about this math? No, ma'am. Okay, प्रथमेश, any कुछ है जो डाउट पूछना है या कहीं पे कुछ क्लियर नहीं हुआ? No, ma'am. ओके, ठीक है, ये जो वीडियो है मैं डाल दूंगी, आपको अगर कुछ स्टेप्स अगर रिवाइज करने हैं तो आप रिवाइज कर सकते हो देख के, एंड यू ट्राई टू सॉल्व. चलो, बाय देन. Bye, ma'am. बाय. Yes, ma'am. Bye.